Okay, so let's proceed ahead with your group task, and this is the group task we are proceeding ahead for chartered accountant. That recruitment process in HPCL. There is a group task, and we are proceeding ahead with that. So this particular group task is coming, and we know how group task is to be done. So first part, you may have explained you everything. Let me again brief you up. In the group task, you people are to behave as a group, as you are to cooperate with one another, and one riddle or one problem will be given to you. Anyone can start, and then you have to talk among yourself for some time, and then you have to give the solution. Since you are part of a team, you have to listen to others, and you have to also give your opinion to others. That is how it has to be. And you are not to unnecessarily interrupt others, and you are not to create the some kind of interruptions in the discussion. And also you are to basically give the relevant points, not irrelevant points. You have to only talk related to the topic which is given to you. So this is a case study which comes on your screen, and this is something which you have to provide. I hope it is visible to you. So yeah, can you see this? Yes, sir. Okay. So let me explain. This is related to raising the fund. Actually, situation is that you are being approached by your graduation college as alumni for certain help. College is facing some problem, especially related to finance. Director of the college has sent a letter to some distinguished alumni, including you, to make some strategy and blueprint to resolve the crisis. How shall you proceed to raise the funds? Also, you have to suggest other means to arrange the funds and help the college.
Okay, so I think now you must have gone through this. So I think we can start now. So please start the discussion. Good morning, friends. Good evening, friends. My name is Rohitas. Friends, today our GT topic is a problem that a graduation college facing financial crisis. So they sent letter to alumni so they can make blueprint and strategy to resolve the crisis. So I invite all of you to participate in the group task. According to me, first we should find out the reason of the problem, and if possible, we should also include our other friends to whom college has not approached. Yes, I would like to divide this in a certain categories, like if our college is facing related to the maintenance issues and related to the some sports sector, and which type of sector our college is facing the crisis. So we have to find out first those problems, and then we should discuss it particularly one by one, and we can allot according to the necessity of these problems. फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग हमें पहले ये फाइंड करना होगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों है, क्योंकि पहले भी कॉलेज चल रही थी तो कहाँ से इनकम के सोर्स कम हुए हैं कॉलेज के। तो एक्चुअली में हम ये फाइंड करें और इसके बारे में पता करने के लिए हम एक टीम बना सकते हैं जो कि इसको फाइंड करे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ हुई है कॉलेज के फंड्स में। एंड रीजंस फाइंड आउट करने के बाद हम एक फंड रेजिंग कमेटी भी बना सकते हैं एंड कॉलेज स्टूडेंट्स की, एंड उसमें बोल सकते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड हैं मेंबर्स टू वॉलंटियर इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक वी शुड वर्क इन ए ग्रुप। जिसको इसको लेटर गया है सबसे कांटेक्ट करके, अगर हम लोग पॉसिबल हो तो एक ग्रुप बना के टास्क असाइन करके एक दूसरे के हेल्प लेके कुछ स्कीम बना सकते हैं, लाइक सोशल अवेयरनेस कैंपेन या फिर सोशल नेटवर्क के थ्रू एक पेज बना के सबको डोनेशन देने के लिए, कि कोई चाहे तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दे सकता है या फिर कोई चाहे तो कॉर्पोरेट डोनेशन दे सकता है। इसके अलावा प्लस हम लोग कल्चरल प्रोग्राम या फिर कहीं शो वगैरह परफॉर्म करके कुछ पॉजिटिव वे में वहां पर से भी कुछ फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सारे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कंसल्ट करके एक ग्रुप बनाना होगा पहले। यू मीन हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? यस। इसके अलावा हम फीस स्ट्रक्चर को जो स्टूडेंट्स के लिए उसके भी हम देख सकते हैं कि क्या उसमें फीस बढ़ाने की कोई गुंजाइश है क्या। अगर कुछ समय के लिए अगर फीस बढ़ा के अगर कॉलेज के क्राइसिस को रिजोल्व करने की कोशिश की जाए तो उसकी भी हम ट्राई कर सकते हैं कि अगर जो स्टूडेंट्स हेल्प कर सकते हैं एक्स्ट्रा फीस के साथ तो उनसे हम एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, बट आई डोंट कॉलेज स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व फीस बढ़ाना सही नहीं है, ऑलरेडी लोग की ग्रेजुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होती है। नहीं, इनकम बेसिस पे कि जैसे अभी कॉलेजों में होती है कि जिसकी इनकम जिस हिसाब से फीस को उस हिसाब से कैटेगराइज कर दिया जाए तो उस हिसाब से बोल रहा हूं मैं कि ऐसा सब मानेंगे एकदम से प्रैक्टिकली कॉलेज को डोनेशन के लिए उसकी बजाय हम डोनेशन का बोल सकते हैं, एक कमेटी बना के फंड रेजिंग कमेटी बना के उसमें हम उनको बोल सकते हैं कि जो इंटरेस्टेड हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स वो पार्टिसिपेट करें, या फिर वो अगल बगल से कहीं और से भी डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये भी उन्हें बोल सकते हैं कि वो कॉलेज के भी यहाँ पे हमारे भी यहाँ पे अगल बगल से भी वो डोनेशन इकट्ठा करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो अवेयरनेस कैंप होते हैं हम वो भी जो हम एक्टिविटीज वगैरह करवाने वाले हैं उसमें हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कोई डांस वगैरह डांस एक्टिविटीज या फिर मैराथन वगैरह टाइप अवेयरनेस के लिए मैराथन। इसके अलावा हम स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं बड़ी कंपनियों से कि हम उनके एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह कॉलेज में कुछ बोर्ड्स वगैरह लगा के उनसे स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं। गाइस, अगर कुछ एलुमिनीज को इनवाइट नहीं किया गया है और अगर हम किसी दूसरे एलुमिनीज को जानते हैं अपने ही कॉलेज के, तो उनसे भी हेल्प मांग सकते हैं ये कि आप अपने कॉलेज में इतनी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंट्री कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर कॉलेज। और ये कमेटी, ये तो फंड रेजिंग हो गया। इसके बाद हमें प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं।
इसमें एक और चीज कर सकते हैं, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा उसमें अगल बगल के जो टॉप बिजनेसमैन है और प्लस जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें भी हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर वो विल इनवाइट कर सकते हैं। वो लोग आएंगे तो कोई डोनेशन दे के जाएंगे। यस, उस वार्ड का या फिर उस एरिया का जो भी एमएलए वगैरह होंगे उनसे कंसल्ट किया जा सकता है। तो एंड वो हमें लोग लिस्ट खुद भी लिस्ट डोनेट प्रिपेयर करनी करते चाहिए हैं। कि किस हिसाब से हम तो लेकिन अगर प्रो एमएलए वगैरह को बुलाएंगे तो या तो कॉलेज हमारा बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड होना चाहिए, या फिर कुछ तो कांटेक्ट वगैरह होना चाहिए। एमएलए ऐसे कॉलेज में कैसे आएंगे? वो सारे किसी न किसी स्टूडेंट का तो जान पहचान निकल ही जाएगा। वो एक बार बात करना पड़ेगा, ग्रुप बना के कंसल्ट करना पड़ेगा कि किससे किससे जान पहचान है, वो लोग हो सकता है कुछ सोर्स लगा पाए। तो फ्रेंड्स, हमें ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए पहले हमें पॉइंट्स को काउंटिंग करनी चाहिए कि किस हिसाब से हमें उन्हें अरेंज करना है, ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें। यस, एक ये फंड रेजिंग कमेटी वाला एक पॉइंट, और उसके बाद जिन इवेंट भी ऑर्गेनाइज, कोई कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करके हम किसी, जैसे उन्होंने बोला एमएलए को इनवाइट कर सकते हैं। एंड रेप्यूटेड वगैरह तो यार इतना तो होता है कि वो लोग आते हैं तो। और आई थिंक हमें सेकंड पे रखना चाहिए स्पॉन्सरशिप को, कि अगर हम जहाँ से स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं कॉलेज के नाम पे, तो हमें स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजमेंट के लिए ले सकते हैं। उसे कंपनियां को अप्रोच करेंगे तो हमें बढ़िया फंड्स मिल सकते हैं। यस, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा जिस एलुमनीज को इनवाइट नहीं किया गया है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें शायद वही रखना चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि 100 एलुमनीज में से 50 एलुमनीज को इनवाइट किया गया हो। तो 50 एलुमनीज के जिनके दूसरे कॉन्टेक्ट्स होंगे, तो उनसे भी हेल्प मिल सकती है। तो वो इस पॉइंट तो हम फंड राइजिंग में रख देंगे ना, कि एल्यूमिनीज के थ्रू और कहाँ कहाँ से हम फंड राइजिंग कर सकते हैं। चलिए, यस, तो इसके फंड अलावा राइजिंग में हमें एल्यूमिनीज हो गए। इसके अलावा एक और काम हो सकता है, जो ऑफ डे होता है, जैसे संडे को कॉलेज ऑफ होता है, उसमें सेमिनार वगैरह के लिए हम लोग कॉलेज का ऑडिटोरियम क्लासरूम्स किसी को रेंट पे दे दें। उससे एक सोर्स ऑफ इनकम तो आ ही जाएगा। वो अगर रेकरिंग बेसिस मिल जाए अगर, वो तो और बेटर है। एक रेकरिंग इनकम चालू हो जाए कॉलेज के लिए भी। यस, ये भी हो सकता है। और जो भी मतलब होटल, वो सॉरी हॉस्टल्स के कुछ रूम्स वगैरह खाली रहते हैं या फिर कुछ ओपन एरिया रहता है, तो वहां पर किसी को लीज पर दे सकते हैं। हाँ, ये काफी अच्छा पॉइंट है कि लीज पे दे सकते हैं हम स्पेस को, जैसे दुकानें वगैरह काफी बाहर के कॉलेजेस लोगों को, में जिससे कुछ काफी ओपन फंड्स मिल एरिया सकते हैं। रहता है, कुछ कॉलेजेस में कैफेटेरिया काफी वगैरह ओपन हम एरिया उसको रहता है लीज जो पे कि दे सकते हैं। अनयूज्ड रहता है, तो उसको लीज पर देकर गाइस वर्कशॉप कर सकते हैं हम अरेंज, तो उसमें भी हम अच्छी फंड रेजिंग कर सकते हैं। वर्कशॉप में लेकिन मेरे एग्जीबिशन वर्कशॉप ये सब। एग्जीबिशन हो सकता है, वर्कशॉप में हो सकता है शुरू में इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा दिखेगा प्लस रिटर्न का हो फंड सकता है रेजिंग टाइम तो लग जाए। बाद में होगी, पहले ये तो देख रहे हैं कि रीजन क्या हो सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कुछ अनयूजुअल वेस्टेज हो रहा हो। सबसे पहले तो हमें अकाउंटिंग वगैरह चेक करनी चाहिए ना कि सब प्रॉपर है या नहीं। वो तो रीजंस फाइंड आउट करेंगे ना सबसे पहले, लेकिन हाँ, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी सोचना पड़ेगा। ये भी उसने सही बोला कि अगर एक पॉसिबल हो तो हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी कंसल्ट करना चाहिए कि हो सकता है क्या बजट में क्या सिस्टम की दिक्कत आ रहा है, यस, आ, कहाँ एलोकेशन हाँ, अकाउंटिंग, सोर्स में कहाँ एक्चुअली है, में फंड वेस्ट किए जा रहे हैं, ये भी हो सकता है कि फंड का वेस्ट यूज किया जा रहा हो। या फिर मिस अप्रोप्रिएट किया जा रहा होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। सभी डिपार्टमेंट में से या जो फिर कुछ सीनियर लेवल का मैनिपुलेट किया होगा। जा रहा हो फंड में से, तो ये भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है कि कहीं पर कितना अलॉट किया गया हो, तो उससे ज्यादा फंड वहां पर रेज हो गया हो, या फिर ज्यादा लग गया हो, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है वहां तो पर। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पहले कॉलेज में जितना फंड है उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, यस, और उसके लिए रिक्वायरमेंट हर ताकि एक वहाँ का कॉलेज के फंड्स को मैक्सिमम यूज किया जा सके। रिक्वायरमेंट पड़े तो कॉस्ट कटिंग किया जा सकता है। जो फंड ऑलरेडी एलोकेटेड है, अगर पॉसिबल होता है वहां से शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। भाई सबसे कहाँ से पहले शिफ्टिंग? जितनी भी टीम्स होती हैं फाइनेंस अकाउंटिंग, उनमें से जो भी सीनियर लेवल का होगा पर्सन, हम उसे अपनी टीम में सबसे पहले तो इंक्लूड करेंगे, तो रीजंस फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर सोच सकते हैं कि हमें इस क्राइसिस को कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए कॉस्ट कटिंग तो ये फ्यूचर के लिए हो गया ना, तो आज कैसे सॉल्व करना है, इसके और क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं।
एक एक रीजन ये भी हो सकता है कि किसी लेक्चर या फिर लेक्चर से रिलेटेड कुछ डिमांड हो लेक्चरर की, तो शायद वो मतलब फुलफिल ना की जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे उनका लेट से कोई एक्स पैकेज है और वो एक्स प्लस समथिंग मांग रहे हो, तो शायद वो फुलफिल ना की जा रही हो, तो इसकी वजह से शायद उनको मतलब अच्छे लेक्चरर हो और उनको रिटेन करने के चक्कर में कॉलेज को ज्यादा फंड देना पड़ रहा हो उस लेक्चरर को। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि पर्टिकुलर फंड ज्यादा जा रहा है उस लेक्चरर को, वहां पे ये देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ठीक से हो रहा है, यानी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है वो मतलब क्लासेस में ऑन रह जाती है ना, तो उसके लिए पावर वेस्टेज। पावर वेस्टिंग और भी कोई भी रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है इस पे। तो आई थिंक फ्रेंड्स हमने 3-4 मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। जैसे पहला हमने कि कॉलेज के जो फंड्स वगैरह हैं, रिसोर्सेज वगैरह हैं, उन्हें बेस्ट मैनेज करें ताकि कम से कम वेस्टेज हो और मैक्सिमम फंड्स वेस्ट होने से बचाए जा सकते हैं। दूसरा हमने फंड राइजिंग किया है, जिसमें हमने कई तरीके की चीजें देखी है कि हम एल्यूमिनाइज के थ्रू जितना फंड हो सकता है उतना वर्कशॉप्स प्रोग्राम करके उनके लिए स्पॉन्सरशिप और कैफेटेरिया वगैरह को लीज पे देके उसके लिए जितना फंड राइज किया जा सकता है। इसके अलावा हम बड़ी कंपनियों से स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया। इसके अलावा जो वर्कशॉप रहती है जिसमें हम सभी स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं, जैसे वो नहीं होता कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल यार वो चीज होती है ना कि खाने पीने की आइटम्स लाते हैं एंड हम उन्हें फिर कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। बाहर से लोग आते हैं, फनफेयर नॉमिनल फीस। हाँ, वो फनफेयर कैफेटेरिया वाले में हमने डाल उसका दिया कि क्या कैफेटेरिया वर्डिंग वगैरह होती है बनाने वो? के लिए हम लीज पे दे सकते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं मैं कह रही, वो शायद वो कोई वर्ड फनफेयर होता होता है। है। में जो एक मेला टाइप या का लगता हाँ है। हाँ हाँ, वो हम कर सकते हैं। अरे वो हमने प्रोग्राम में डाल दिया ना कि किसी प्रकार के कॉलेज में प्रोग्राम करके उनके कल्चरल थ्रू प्रोग्राम या फिर स्पोर्ट्स अरेंजमेंट। प्रोग्राम, हाँ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। हाँ, स्पोर्ट्स किसी भी तरीके के प्रोग्राम कॉलेज में हम उनके थ्रू फंड्स राइज कर सके हैं। ये तो या गाइस फिर ये सोल्यूशन भी है, दे ये सकते तो हैं। पर रीजंस को भी एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए आई थिंक। रीजन में आई थिंक हो सकता है कि कोई पॉसिबल कंस्ट्रक्शन या फिर कोई कॉलेज में काम लगा हो या फिर करेंटली ह्यूज मेंटेनेंस वर्क में कुछ काम हुआ हो, जिसके कारण हो सकता है फंड कुछ वहां ज्यादा यूज हो गया हो। मे बी पॉसिबल शॉर्ट रीजन ये टर्म के लिए ये हो या सकता फंड वेस्टेज भी हो सकता है कि फंड का कुछ वेस्ट यूज किया जा रहा हो जिसकी वजह से फंड की शॉर्टेज हो गई हो। है, यस ये हो सकता है। फंड Okay, शॉर्टेज। so this situation should not arise where you have nothing to speak. Anyhow, that situation has come, so I want now somebody to conclude the entire discussion. Who would like to conclude? Friends, I like to conclude that we discuss here 3-4 major points, that how to we resolve and what is the so first we problem that we check the balance sheet and other resources wastage, so we minimize the wastage of the funds. Second, we fundraising through many ways like alumni and programs in the college, so like sports tournament and festivals वगैरह। इसके अलावा हम लीज पे दे सकते हैं कैफेटेरिया या दुकानों के लिए, और इसके अलावा वर्कशॉप्स करवा सकते हैं। इसके अलावा हम स्पॉन्सरशिप के लिए बड़ी कंपनियों से कांटेक्ट कर सकते हैं कि उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम करेंगे और उसके बदले में वे हमें स्पॉन्सर करें कुछ फंड्स। सो दैट्स ऑल कंक्लूजन। Any other idea from anybody's side? कोई यस point? Go ahead. सबसे पहले हम लोग जो जितना भी अलमुनी को सर लेटर गया है, सबसे पहले मिल के कंसल्ट करके एक टीम बना, ग्रुप बना के हम लोग कोशिश करना चाहिए जो कॉलेज के सारे डिपार्टमेंट्स है, मेनली फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनसे पता करना चाहिए सर करेंटली फाइनेंस प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। हो सकता है करंट ईयर में कहीं पर कंस्ट्रक्शन या फिर कोई रिपेयर मेंटेनेंस वर्क चल रहा हो जहाँ फंड प्रॉपर या ज्यादा यूज हुआ हो, या फिर कोई वेस्टेज चल रहा हो, वो सब हम लोग कंसल्ट करके जो वेस्टेज उसको रोक सकते हैं और जहाँ पर रिक्वायरमेंट वहाँ पर प्रॉपर रीएलोकेशन फंड का कर सकते हैं। इसके अलावा सर सोशल नेटवर्क पे या फिर जितना भी ग्रुप में या पॉसिबल वैसे न्यूज़पेपर या पैम्पलेट जो भी
उससे डोनेशन के लिए सर सबको इनवाइट कर सकते हैं, स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि आप अगल बगल जाइए, वॉलेंट्री या फिर कॉर्पोरेट डोनेशन जो भी आपको लेके आना है पॉसिबल लेके आइए। इसके अलावा सर कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम या फिर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी करवा सकते हैं जिससे कुछ इनकम आए, और उसमें सर स्पॉन्सरशिप के भी थ्रू करवा सकते हैं। प्लस उसमें सर बिजनेसमैन एमएलए को इनवाइट करेंगे, उनसे क्या हो कि वो आएंगे तो कुछ डोनेशन देके जाएंगे। इसके अलावा कॉलेज में एक्सिबिशन ये सब करा सकते हैं। ये सब सर कुछ सोर्सेस जनरेट करने सर पॉसिबल इनकम जनरेट करने सर ये तरीका है सर कुछ। Okay, so any other point? Okay, so let me give you the now, you know, this graduation college, you are alumni of some graduation college, and the college is facing some finance problem. So director has sent some letters to you and has asked for your help in how it can be resolved. Right? So the status, the you know, stages or steps can be, first of all, you should you know, try to make a team. Again, the same statistics. You should try to make a team in which you should keep some faculty members, and you should keep some alumni of different, I'll say, years, like a particular batch, one alumni per batch, because that can be helpful, right? So let's say the people who passed out 95, 96, 97, 98, one fellow, something like that. Especially those who are in really good positions. That team can be made, and coordination can be done with the faculty. So let's make a team, and first there has to be you know, brainstorming session, if possible, in the college with alumni. Why the financial problem has come, that is to be identified. We assume either the college is government or it is private or some semi-government or society-based college. So either government is the owner or some management will be the owner. Their perspective is also to be taken. Suppose it is a government college. Then other than alumni fund is one of the options for you. That obviously you will try to do. Other than alumni fund, there can be other means also. Alumni fund तो एक है ही, जो आप alumni को पहले तो जो मीटिंग किया उसमें आपने पूरे पॉइंट लिखे कि रीजन क्या, कॉज क्या है कॉलेज के फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने का, हाउ मच हेल्प इज रिक्वायर्ड एंड विल इट बी सस्टेनेबल. सस्टेनेबल इज द वर्ड. कॉलेज का रीजन फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने का है कि एडमिशन नहीं हो रहा सपोज, तो क्या आपके पास फंड आने के बाद एडमिशन हो जाएगा? आंसर इज नहीं. तो इट इज नॉट सस्टेनेबल. फंड आने के बाद हम कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे जिससे एडमिशन नहीं हो रहा था या फिर एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इतने पैसे अगर इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद कॉलेज को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा. दैट इज प्रूव्ड. देन लेट्स स्टार्ट रेजिंग द फंड. सो विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम you cannot start raising the fund, and for that brainstorming is required. Now once you are convinced that these are the problems, जैसे आपको पता लगा कि सब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेज कर देंगे तो हमारा एडमिशन बढ़ जाएगा या हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. या अभी तो कोविड की प्रॉब्लम है, कोविड 2 साल हमेशा तो नहीं रहेगा. कोविड के टाइम पे डायरेक्टर साहब ने मेल किया एडमिशन नहीं हो रहा, कोई नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है, हमें सर्वाइव करना है. ठीक है, कोविड के टाइम में हमने हेल्प किया 2 साल का सर्वाइवल के लिए, कितना फंड चाहिए, लेट्स से दिस मच करोड़, चलो रेज कर दिया. 2 साल के बाद क्या होगा सर, कोविड थोड़ी रहेगा पूरी लाइफ, तो कोविड जब नहीं रहेगा तो हमारा एडमिशन होगा, हम सस्टेन कर जाएंगे. ठीक है, डन. सो फाइंड आउट द कॉज. देयर कैन बी डिफरेंट कॉजेस दैट डायरेक्टर एंड ऑब्वियसली the team member will tell, and in that team member there should be financial team of college also, accountants and all these people, senior staff that can also come and that they can brief. उसके बाद फंड रेजिंग के तरीके. फंड रेज करना क्यों है, परमानेंट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंस की प्रॉब्लम क्यों है वो प्रॉब्लम है. व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस. जैसे आप में से कईयों ने बोला कि मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा, मिसयूज तो नहीं हो रहा, तो वो चीज रीजंस आइडेंटिफाई करो. जब आपने बोल दी साहब एक टीम बनाते हैं, मीटिंग करते हैं, डन, पहला स्टेप. उस टीम में, उस मीटिंग में करेंगे क्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग. किस चीज का, कि व्हाट आर द इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आया, इसके इश्यूज तो लिखो. ठीक है, डन. हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड सो दैट नेक्स्ट टाइम दिस फाइनेंशियल इशू डज नॉट कम. फाइंड आउट दैट. देन हाउ टू रेज द फंड. नाउ लेट्स से हाइपोथेटिकली वी आइडेंटिफाई 5 करोड़ चाहिए. एलुमनी बेस देखा कितना है,
कई बार ऐसा भी हो सकता है कॉलेज नया है, कॉलेज बहुत पुराना नहीं है, ऐसा भी हो सकता है बहुत पुराना है, बहुत पुराना कॉलेज है, अच्छे एलुमनी है, अब्रॉड गए हैं, मे बी हम जनरेट कर सकते हैं फंड, 5 करोड़ हम जनरेट कर सकते हैं। ये भी देखो कि कॉलेज की मैनेजमेंट कैसी है, गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट है कैसी है, किस तरीके की कॉलेज की मैनेजमेंट है, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद जब पता लग गया कि कॉलेज की मैनेजमेंट प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, तो और तरीके भी देखो फंड रेजिंग के क्या हो सकते हैं। गवर्नमेंट कई बार हेल्प कर देती है, एड दे देती है, प्राइवेट प्लेयर से भी आपको हेल्प मिल जाता है। तो वो सारी चीजों से आपको प्राइवेट मैनेजमेंट भी हेल्प कर देती है। तीसरा, फिर कॉलेज के रिसोर्सेज होते हैं बहुत से, क्या उन रिसोर्सेज को यूज करके फंड जनरेट किया जा सकता है? जैसे कॉलेज का प्ले ग्राउंड, ऑन वीकेंड लेट्स गिव दैट प्ले ग्राउंड फॉर पीपल टू प्ले एंड वी कैन चार्ज। पार्किंग के लिए स्पेस दे दिया आपने, कॉलेज को क्लासेस के लिए अलाउ कर दिया, कोई पर्टिकुलर क्लासेस चल रही है, आप कॉलेज के जो रिसोर्स हैं उनको आउटसोर्स कर सकते हैं, so that funds are generated. That can also be done. So this is how I think we can approach the entire problem. मेरे को लगता है ये आपके जो मेन पॉइंट्स थे, इस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते थे। Now in entire group, I think you people were discussing, no doubt about that. लेकिन yes, थोड़ा सा ना ये पॉइंट्स को लेके मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा जितने भी ग्रुप टास्क पड़े हुए हैं पैनल के ऊपर, उनको गो थ्रू करना स्टार्ट करो, उनको सुनना स्टार्ट करो, how this can be done, how this can be done. Right? So all from my side, anything you want to ask or tell? तो अभी एक काम करो, जितना भी ग्रुप टास्क पड़ा है ना पैनल पे, उसको सुनो, साथ साथ में जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ उसको लिख लिया करो। आई होप जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख लेते हैं आप, वहां पे आपके यूट्यूब पे ये डल जाते हैं, ग्रुप टास्क वगैरह डल जाते हैं, और इनको आप साथ साथ सुन लिया करो और कर लिया करो। राइट? Yes, sir. Okay. देन वी मीट टुमारो अगेन। तो IUCL का भी रिजल्ट आ गया है आज, शॉर्ट लिस्टिंग आ गया, मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू जॉइन फॉर IUCL ग्रुप टास्क आल्सो, सो रेगुलर Yes, टीम मल्टीपल ग्रुप टास्क विल बी देयर। राइट? तो सी यू टुमारो एट Yes. सर अगर 10 में अगर मार्क्स देना होगा तो कितना आप सर दीजिएगा सर, और प्लस कल के कंपैरिजन में इम्प्रूवमेंट कितना कुछ? कल कुछ बच्चे ऐसे थे जो अच्छा डिस्कशन कर रहे थे, यस सर। आज वो मिसिंग है। तो मैंने बताया ये ग्रुप टास्क होता है, तो आज का ग्रुप जो था वीक चल रहा है आपका ग्रुप, तो सोल्यूशन निकल के नहीं आए, को बहुत अच्छे इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं निकले आपकी तरफ से, जो मेन पॉइंट्स हैं। तो आज के मार्क्स अगर मैं ना दूं तो अच्छा है। तुम्हें अभी थोड़ा प्रैक्टिस करें, आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। और दूसरी बात, ग्रुप टास्क बहुत से पड़े हुए हैं पैनल के ऊपर, जब तक आप सुनेंगे नहीं आपका थिंकिंग डेवलप नहीं होगा। वैसा जैसे जो मैंने आज को आपको बताया, वो एक थिंकिंग है कि जैसे मैंने कल भी बताया था, टीम बनाओ ना यार, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, टीम बनाओ, रियल कॉज ढूंढो, ये कुछ सॉल्व करने के तरीके हैं जो रियल वर्ल्ड में चलते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, आप में से कहीं ने जॉब भी किया होगा, तो जब करते हैं तो यही तो होता है। कोई प्रॉब्लम आ गई भाई साहब, तो क्या करते हैं सबसे पहले? टीम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। ऐसे कोई चाय की दुकान पे बैठ के थोड़ी उसको डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए टीम चाहिए होती है, टीम बनाते हो एक रियलिस्टिक टीम, उसमें डिस्कशन करते हो, वो चीजें लेके आओ ना यार, जो एक्चुअल में होता है वो चीज उसको चाहिए, तरीका सिस्टमेटिक, और प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। वो कॉज तो ढूंढो, तुम लोग फंड रेज कर रहे हो किस चीज के लिए? एडमिशन नहीं हो रहा, अगले साल हो जाएगा, नहीं तो क्या तुम पूरी लाइफ उसको एल्यूमिनी पैसे से चलाना चाहते हो क्या? सस्टेनेबिलिटी का है, दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ। राइट? चलो ठीक है, देन आई थिंक वी कंटिन्यू टुमारो, एंड थोड़ा पढ़ लो सारे के सारे टास्क, बट यस लर्न एज क्विकली एज यू कैन लर्न। राइट? थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।